Good morning, students. We have discussed about fraction, like fraction, mixed fraction, proper and improper fraction. And we have discussed question number 1st to 4 of exercise 2.1. First question is comparison, second ascending and third descending order, and fourth equivalent fractions. Now we will start question number 5. Question number 5, find the sum. And question number 6 is difference. We will learn about difference and sums in fractions. First question, first part is 5 by 8 plus 3 by 10. 5 by 8 plus 3 by 10 we will add. We are taking LCM 8 and 10. 2 4s are 8, 2 5s are 10. 4 and 5 are consecutive numbers, not divisible by any numbers. Then we will multiply 2 multiply 4 multiply 5. We will multiply 2 4s are 8 and 8 5s are 40. LCM is 40. Now second method, I have told last video, second method of LCM. As your wish, which method you are using? 40. But आपको first of all you see big digit 10 and 8. 10 is bigger than 8. And now we will start table of 10. 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40. देखो आपको क्या चेक करना है, 10 से डिवाइड है 40 एंड 8 से डिवाइड है 10, 20, 30 एंड 40. लास्ट जाकर 40 डिवाइड है किससे? 8 से. एंड 40 ऑल्सो डिविजिबल बाय 10 एंड 40 डिविजिबल बाय 8. देन एलसीएम विल बी 40. तो आपको चेक क्या करना है कि जो 40 है उसके जो आपने जो टेबल ली है, जो सबसे पहले आपको चेक करना है बड़ा कौन है उसमें से, डिनोमिनेटर कौन बड़ा है. फिर उसमें चाहे आपके कितने भी नंबर्स क्यों ना हो, कितने ही डिनोमिनेटर क्यों ना हो, उसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि बड़ा जो डिनोमिनेटर है वो कौन है. क्या वो जो अदर्स जो डिनोमिनेटर है क्या उनसे वो डिविजिबल है या नहीं है. अगर वो डिविजिबल नहीं है तो आप उसकी टेबल को 2 जा 3 जा 4 जा तक बढ़ाते जाएंगे. उसके बाद आपको जो अदर्स डिनोमिनेटर है उनसे चेक करना है कि कौन सा जो मल्टीपल्स है जाकर उससे डिवाइड हो रहा है उन सभी डिनोमिनेटर से. जैसे अब मैंने देखा 10 था, जो 10 है वो डिवाइड नहीं हो रहा 8 से, तो मैंने आप जो टेबल है वो आगे आपकी इंक्रीज करी है. 10 2 जा 20, तो 20 नॉट डिविजिबल बाय 8 एंड 30 नॉट डिविजिबल बाय 8 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8. देन 40 डिविजिबल बाय 8. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड 40 by 8. 8 5s are 40. Quotient is 5 and then multiply numerator. 5 5s are 25 and plus 10 4s are 40 and multiply by 4. 3 4s are 12 and 25 plus 12, 5 plus 2 7 and 2 plus 1 3. 37 by 40 is answer. तो आपको दोनों मेथड में से जो आपको ज्यादा इजी लग रहा है आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हो. अब नाउ सेकंड पार्ट इज मिक्स फ्रैक्शन. 4 into 3 by 4 plus 9 into 2 by 5. It is mixed fraction and it is a proper fraction, and because numerator is less than denominator, a combination of whole numbers and proper fractions, that is mixed fraction. I have told last video, whole number and proper fraction. 4 into 3 by 4 and 5 by 8 is proper fraction and 10 by 3 is improper fraction. Now we will solve second part, mixed fraction. First of all we will multiply whole and denominator. 4 4s are 16, 16 plus 3 19, 19 by 4 and plus 9 5s are 45 and add numerator. 9 5s are 45, 45 plus 2 47 by 5. 4 and 5 are consecutive numbers. 4 and 5 are consecutive numbers.
देन नो एनी नंबर्स डिविजिबल बाय 4 and 5। कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे 4 and 5 को, सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर्स 4 and 5। ओके, 4 and 5, 4 5s are 20, 4 5s are 20, 20 divisible by 4, 4 5s are, and then multiply by numerator, 19 5s are 95, and plus 5 4s are multiply by numerator 4, 4 7s are 28, and 2 will be carry, and 4 4s are 16 plus 2 18, and then we will add 188, add 95, 8 plus 5 13, 1 carry, 9 plus 8 17 plus 1 18, and 1 183 by 20। and now converting mixed fraction, divided by 20, first of all we will divide 1 is smaller than 2, now we will take 2 digit, 2 9s are 18, 9 zeros are 0, and 9 2s are 18, and then remainder is 3। and now how will you make mixed fraction, 9 is quotient as it is, and 3 is numerator, 3 will numerator, and 20 is denominator, and 9 into 3 by 20 is answer। I am repeating again, it is a mixed fraction, a combination of whole and proper fractions। Proper fraction numerator is less than denominator, and improper fraction numerator is greater than denominator, and mixed fraction a combination of whole numbers and proper fraction। It is question number 5, and you will do yourself question number 5 of part of 3rd and 4th। now we will start question number 6। you will do question number 6 3rd and 4th part, I will do question number part of 1st and 2nd। what is find the difference, find the difference, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा आपको सबसे पहले टेबल लर्न करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है ना तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, 6 and 23 by 3। मैं आपको इसलिए ये करा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो 3rd पार्ट है उसके अंदर आपका 5 by 6 और प्लस 3 दे रखा है। 5 by 6 प्लस 3 एंड प्लस 3 by 4 है, तो आपको उससे देख के डरना नहीं है, आप उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 1 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे फिर आपको एलसीएम ले लेना है, उसके बाद एज इट इज चलेगा। मैंने इसीलिए ये वाला पार्ट लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 6 आ गया है तो उसके नीचे हम 1 राइट डाउन कर देंगे। ओके, अब मैंने आपको बताया था जहां पे फ्रॉम आए, फ्रॉम के बाद वाला जैसे लाइक दिस 5 by 6 फ्रॉम 3 by 9, मैंने आपको बताया था ना 3 by 9, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 3 by 9 एंड सब्ट्रैक्ट 5 by 6। तो आपको सबसे पहले 3 by 9 लेना, उसके बाद उसमें से 5 by 6 माइनस करना। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे एंड दे रखा है आपको, तो एंड दे रखा है तो सीधा करेंगे 6 by 1 माइनस 23 by 3। ओके, उसके बाद आप एलसीएम, वी विल टेक एलसीएम। थ्री 1 से जो डिवाइड हो रहा है कौन 3, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 एंड माइनस 3 से डिवाइड हो रहा है 3 तो 1, 3 1 जा 3 तो माइनस 23। तो आपका आंसर यहाँ पे माइनस 5 by 3 दे रखा है। क्यों दे रखा है? आपका जो आंसर है बुक में वो 5 by 3 है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो माइनस 5 by 3 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने ऐसी कोई कंडीशन हमें दे नहीं रखी कि किसी क्वेश्चन में वो ऐसे आंसर दे रहा है कि फ्रॉम लिख के, तो हम लोग वहां से अपना पीछे वाला नंबर उठाएं और उस सामने फर्स्ट वाले को हम
माइनस कर दे, लेकिन उसने साफ साफ लिखा फाइंड द डिफरेंस। तो हम लोगों को इन दो के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, तो आपको आंसर पे नहीं जाना है। अगर आपका माइनस में आंसर आ रहा है तो माइनस में ही रखेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर इस तरह से मैच हो। जो माइनस वाला जो आंसर आ रहा है बुक के अंदर उसको प्लस में कन्वर्ट करके दे रहा है, इट मीन्स वो इस फर्स्ट वाले में से लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि उसने कोई कंडीशन दी नहीं हमें कि फाइंड द डिफरेंस लिखा है बस, तो हम सीधा सीधा करेंगे, उसके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। अब हम लोग या तो कंपैरिजन करें पहले कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसके बाद आप लोग करो। अगर आप सीधा कर रहे हो यहाँ पे तो माइनस में आंसर आ रहा है तो इट्स ओके, माइनस में आने दो। और अगर आपको आंसर में ही जाना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर 6/1 एंड 23/3। तो मैंने आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बताया था उसमें आपको बताया था कि एरो डाल के आपको मल्टीप्लाई करनी है कि 6 3 जा 18 और 23 1 जा 23। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि ये बिगर है, तो आप इसको ले सकते हो कि 23/3 और माइनस 6/1 आप माइनस करो। लेकिन उसने यहाँ पे कहा नहीं है कि आप इसका माइनस इस तरह से करो। हमारा जो क्वेश्चन था हम लोगों ने सीधा सोल्व किया, तो आंसर हमारा -5/3 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप माइनस में आंसर निकालते हो तो भी ठीक है, और आप कंपेयर करके उसको आगे लेके और उसके बाद जो स्मॉल नंबर उसको पीछे रख के निकाल रहे हो तो भी ठीक है। तो ये डिफरेंस का था। अगर वो यहाँ पे लिख देता फ्रॉम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लास्ट नंबर, ओके। तो अगर आपको आंसर मैच करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर एंड आफ्टर दैट सबट्रैक्ट, अदरवाइज आप सीधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो थर्ड पार्ट है 21/25 एंड 18/20। अब देखो यहाँ पे, अब आप कर सकते हो यहाँ पे कंपैरिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई कंपैरिजन, तो मैं यहाँ पे करूंगी 21 और 20 की मल्टीप्लाई, 0 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 40। अब उसके बाद मैंने इसको किया 18 5 जा 99 कैरी, 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 450। तो अब ये बिगर है तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे 18/20 एंड माइनस इज 21/25 एंड वी विल टेक एलसीएम। जो भी एलसीएम आपका आएगा उसके बाद आप इसको सोल्व करोगे। और अगर आपने इसको सीधा कर दिया 21/25 और 18/20 तो एज इट इज माइनस में आंसर आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइनस में आ रहा है तो आने दो, माइनस में चलेगा ये। उसके बाद आपको चेक करना है क्या 25 जो है डिवाइड हो रहा है 20 से, नहीं हो रहा तो आप 25 की जो टेबल है उसको आगे तक इंक्रीज करेंगे। 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, तो 100 इज एलसीएम। आप अपना जो मेथड है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद 20 से आप इसको डिवाइड करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगी, फिर इसको करोगे यहाँ पे, फिर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ओनली, तो आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हो और ट्राई करना है। यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ऑल्सो, अदरवाइज योर होमवर्क is क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6।